Hello everyone, welcome to my channel DADA'S Physics. So in this video I will discuss about the previous discussion that I have already uploaded, that is blackbody radiation. So at first I just revised the previous video, that is what is blackbody radiation and what is blackbody. In my last video I have already said that blackbody is not a body which is colored black. Okay, blackbody is actually a body which absorbs every radiation which is incident on it. That is called blackbody. And similarly there is a concept of white body which actually reflect every radiation from 0 to infinite wavelength. Okay, wavelength. So that is called white body. So in this lecture I basically discuss about the experimental observation from blackbody radiation, and it is shown in this graph actually. Okay, so experimentally it is observed that if we draw a graph between emissive power and the wavelength with different temperature of a body, then we get this kind of variations. So at first we need to know that what is emissive power. So emissive power is actually the power, if we watch this the unit of this emissive power here, that is kilowatt per meter square per per nanometer. Okay, so from this unit you can imagine the definition of emissive power. First of all, it is a power, that means energy per unit time. Okay, emitted per meter square, that means per unit area, per nanometer, that means per unit wavelength. Okay, so emissive power is actually emitted energy or emitted radiation electromagnetic energy here, emitted energy per unit second, per unit area, per unit wavelength. Okay, so that is called emissive power. And here we observe that if we draw a graph for emissive power with wavelength, and then we get this kind of variation. And if we increase the temperature of the body, we get a shift of maximum wavelength released. Okay, if you observe this graph very carefully, then यहाँ पे देखो we get a shift of maximum wavelength, maximum wavelength corresponding to the maximum emitting energy. Okay, this is a wavelength of 400 nanometer almost at 7000 Kelvin. Okay, similarly this maximum wavelength, the most emitted wavelength, actually not maximum, most emitted wavelength for 6000 Kelvin is near about 500 nanometer, and similarly for 5000 Kelvin it is become 500 nanometer. For 4000 Kelvin it become 600 nanometer. So actually if we increase the temperature, then the emitted energy corresponding emitted energy, maximum emitted energy become with corresponding wavelength. ओके, सो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी जो एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर एक्चुअली एनर्जी को यहाँ पे रिलेट कर रहा है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम emitted energy become lower for high temperature. Okay, so temperature जब increase हो रहा है, then this wavelength become low, and if temperature decreases then the wavelength become high. Okay,
there is a shift of blue to red when we decrease the temperature, and red to blue when we increase the temperature. So this is very important observation from this graph. And second observation is that energy emitted for very high wavelength, okay, become almost zero. यहाँ पे अगर वेवलेंथ को इंक्रीज करते जाए तो एनर्जी एमिटेड बहुत कम रहा है, ओके। सिमिलरली अगर वेवलेंथ को डिक्रीज करते जाए, ओके, इफ वी डिक्रीज द वेवलेंथ देन energy emitted per unit second per meter square per nanometer, that is emissive power, also become zero. So for lambda tends to 0, you can say that emissive power becomes 0. For lambda tends to infinity, also emissive power becomes 0. and there is a relation we get between emissive power and temperature, that is E is equal to sigma T to the power 4, okay, where T is the temperature of the body, that is absolute temperature definitely, and this relation is known as Kirchhoff's law. But the problem is the classical idea of electromagnetic radiation cannot explain this graph, okay. Classical idea of electromagnetic radiation cannot explain it. Now we need to know how can I explain this graph, okay. And scientists definitely attempt to explain this graph using classical idea, but they half succeeded, okay. But they half succeeded. So at first we need to know about their half successful explanation, then we go for new explanation of the blackbody radiation, which gives us the idea of quantum mechanics, okay. So let's start. So यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, ओके। सो जो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation, and this electromagnetic radiation definitely follows the laws of electromagnetic wave, that is for x-axis del square phi divided by del x square is equal to 1 by c square del square phi divided by del t square. This is the wave equation. This is the wave equation which follows by the two component of electromagnetic radiation that you already know, that is electric field and magnetic field. Because electromagnetic wave is made of two component, that is electric field, time varying electric field, and time and space varying electric field definitely, and magnetic field which also time and space varying, okay. So here actually phi represent the electric field and magnetic field in same, we represent both of them as phi, okay. So we can write for x-axis phi is equal to a naught sine kx minus omega t, where k is the wave vector, okay, that is k is equal to 2 pi by lambda, and omega is the angular frequency, and which is equal to 2 pi into n, okay. So c is equal to, that is the speed of electromagnetic wave, that is omega by k, okay. So in this case we consider at first a cubical part of a black body which has dimension L cross L cross L, okay. A cubical part of black body which is dimension L cross L cross L, okay. Now imagine, you know that electromagnetic radiation is possible due to the oscillation of charge particle, okay. अगर charge particle oscillate करेगा तो उससे electromagnetic radiation आएगा,
Okay, that is already known to all of you. Now we need to know about these oscillations, and we need an explanation, we need an expression which gives us the idea about MAC power and the corresponding wavelength, or the relation between MAC power and corresponding wavelength. ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग ये कंसिडर करो कि एक क्यूब है, ओके, दिस इज ए क्यूब, okay, or you can say three-dimensional box. In quantum mechanics, one-dimensional box, two-dimensional box, and three-dimensional box. There is three type of box, and we will discuss about this later. Okay. From this idea, we get a concept of nodes. Okay, a concept of modes of electromagnetic radiation. So now the question is, what is the mode of electromagnetic radiation? Just think about the standing wave. Think about the standing waves. You know the standing wave. This is a wire, and both side closed wire. Then standing wave can form this type of wave, and for this you can write that L is equal to lambda by 2. Why? Because there is two nodal point here at this point, and the distance between two nodes is lambda by 2. And if we consider that this is the length, this is the length of the wire L, then L is equal to lambda by 2. Similarly, this standing wave can form this type of mode. Okay, this type of mode, and for this there is 2 lambda by 2. Okay, so here L is equal to 2 into lambda by 2. Finally we get that L is equal to n into lambda by 2, where n is an integer number. This n actually represent the modes. Okay, for this standing wave. Now for the blackbody radiation, there are charged particle and they oscillates, and we consider that they forms some standing waves in this cubical box, along x-axis, along y-axis, along z-axis. Okay, and this must follow, and the wave must follow this wave equation. Okay, because this is the electromagnetic radiation and the wave is electromagnetic wave, and which follows this differential equation, and this is the solution of the differential equation. Now we use some boundary condition. Now what is the boundary condition? Boundary condition means if we just ignore the time part of the time dependent part of this wave, we consider phi x, then we get a naught sine kx. Then the boundary condition is there that at phi is equal to 0, you can relate to this. This is x is equal to 0, and this is x is equal to L. Okay, for this cubical box there is 3L. There is 3L along x-axis, along y-axis, along x-axis, along y-axis, and along z-axis. Okay, along z-axis. So there is 3L. So here at phi is equal to 0, there is a node, that means this becomes 0. Okay, and similarly for phi at L, x is equal to L, this become also 0. And if we use this, that phi L is equal to 0, then a naught sine KL is equal to 0, and from this KL is equal to n pi. KL is equal to n pi, and K, that is, or you can say Kx, that is wave vector along x-axis, that is n pi
n pi by L. N pi by L. So this is the value of kx. Okay. Similarly, you can find the values of ky, that is ny pi by L. Similarly, kz, that is nz pi by L. Okay. So these are the values of these are the values of wave vectors along x-axis, y-axis, and z-axis. X-axis, y-axis, and z-axis. Okay. Now, from these values, what can I do? From these values, you get an idea about this kx, ky, and kz, and the resultant value of k is actually kx square, ky square plus kz square. And if you put all these values, then what you will get? You will get that k square L square by pi square is equal to nx square plus ny square plus nz square. Just put the values. Okay. And this equation actually represents, if you take that an coordinate system of k space. Okay, that is here kx, here ky, here kz. Then this represents a sphere which has a radius of k square of kl by pi. Okay, which has a radius of kl by pi. Okay. So now think what we need. We need an explanation of energy density and a relation between mass power with wavelength. Okay. Now the thing is that if you consider that U is the amount of energy per unit volume with frequency range n to or nu to, frequency range nu to nu plus d nu, then this is the energy emitted per unit volume with frequency range nu to nu plus d nu, and this is equal to, you can write n into epsa into d nu. Okay. Now what is n? N is the number of oscillating atoms per unit volume, and epsa is the average energy emitted per atom. Okay. So we need this n, that is the number of atoms oscillating per unit volume, and this gives the volume of the sphere in k space, and the volume of this sphere is 4 by 3 pi r cube, and this gives a idea of 4 by 3 pi into v divided by pi cube, into k cube. Now what is v? V is actually volume of the cube, that is L cube, volume of cube. जो क्यूब मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया था वही क्यूब का वॉल्यूम है ये. ओके. अब देखो किसी भी क्यूब यहाँ पे जो रेडियस मैंने लिया है उस रेडियस से एक स्फीयर बनेगा. ओके. एंड यू नो दैट if we draw a cube here, and we place a sphere which has center at the origin, then the sphere is actually at a corner of this cube. That means इस क्यूब में ये स्फीयर का सिर्फ 1/8 पार्ट ही आ पाएगा. ये तुम लोगों ने सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी पढ़ा था. कोई भी स्फीयर अगर
कोई भी क्यूब का कॉर्नर में रहेगा तो वो 1/8 पार्ट सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो यहाँ पे फुल वॉल्यूम नहीं आ पाएगा इस स्फीयर का। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे स्फीयर का वॉल्यूम हम ले क्यों रहे हैं? एक्चुअली जो वेव है, तो वेव का जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस वेव का मैंने क्या लिया था, मैंने बाउंड्री कंडीशन लिया, वेव का ऑसिलेशन ले लिया, एंड उसके बाद मुझे एक kx ky kz मिल गया। और ये kx ky kz क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वेव किस तरफ जाएगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट से वेव चारों तरफ एक सिमेट्री फॉलो करके एमिट करेगा। ओके, सिमेट्री फॉलो करके एमिट करेगा, एंड ड्यू टू दिस सिमेट्री दिस विल मेक ए स्फीयर, एंड वी नीड द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Okay, amount of energy per unit volume. That's why we find the volume of this sphere and the relation between the volume of the sphere and the relation and the cube, because we consider the cube, okay, cube of length L in the black body. Okay, so यहाँ पे देखो V is equal to L cube, मैंने V को पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या आएगा? अब हमें चाहिए ये एक्चुअली तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट का एनर्जी यहाँ से हमें मिल रहा है, कितना अमाउंट का एनर्जी हमें मिल रहा है। ओके, बाय द एटम्स इन वॉल्यूम V। ओके, तो एक्चुअली हमें मिल रहा है एक एक एटम के ऑसिलेशन के लिए एक एक वेवलेंथ मिल रहा है, and for each atom we get this volume. Okay, now what we need? We need the value of n, that is the number of atoms per unit volume, and to find this n, to find this n, that is number of states or oscillating atoms, okay, we need 1/8 into 4/3 pi into V by pi cube into k cube. Okay, now just put k is equal to omega by c here, and we get this relation, that is 8/3 pi nu cube by c cube into V. Okay, and this is the value of n, this is the value of consider this capital N, okay, because capital N represent the number of atoms per number of atoms oscillating with in volume V. Now we found n by V, which is equal to 8/3 pi nu cube by c cube. Okay, pi nu cube by c cube. Now this gives n by V. मतलब यहाँ पे डेंसिटी मुझे मिल गया ऑलरेडी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑसिलेटिंग within a range nu to nu plus d nu, within a range nu to nu plus d nu. So from this within range nu to n plus d nu, that is n d nu is equal to, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक काम करते हैं, रो ले लेते हैं, n by v को रो मान लेते हैं, रो
डी न्यू के साथ डिफरेंशिएट कर लिए तो 8/3 पाई, यहाँ पे न्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 नहीं रहेगा, न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब। ओके, ये मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू डी रो इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया यहाँ से। अब इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा u डी न्यू u डी न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे n डी न्यू का जो वैल्यू है 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब इंटू डी न्यू, सी क्यूब बाय डी न्यू इंटू डी न्यू। ओके, अब इस रिलेशन से और एक चीज है, यहाँ पे एक एप्सा रहेगा, और एप्सा एक्चुअली क्या है, एप्सा है एनर्जी एमिटेड पर एटम। ओके, नाउ एक एटम को हमने यहाँ पे ऑसिलेशन के लिए चुन लिया, एटम ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम को सोच लो। यहाँ पे ऑसिलेट करने के लिए ऐसे एटम का जो एनर्जी होगा, तो एनर्जी में दो कंट्रीब्यूशन रहेगा। क्या, एक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकंड रहेगा इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पोटेंशियल एनर्जी के लिए और एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक काइनेटिक एनर्जी का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगा जिसको मैंने एप्सा करके मेंशन किया, इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू के टी। ओके, वेयर के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे एफ का वैल्यू हो गया 2 बिकॉज ड्यू टू ए पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यू टू ए काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसका जो एनर्जी बन जाएगा वो होगा के टी। मतलब यू डी न्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू के टी इंटू डी न्यू। ओके, नाउ you know that C is equal to new lambda, C is equal to new lambda। मतलब यहाँ पे C by new कर लो is equal to, और यहाँ पे ये काम कर लेते हैं, new is equal to C by lambda। मतलब d new is equal to minus C by lambda square into d lambda। Now put these values here, 8 pi न्यू स्क्वायर है, यहाँ पे न्यू स्क्वायर के जगह में मैंने यहाँ पे ये पुट कर लेंगे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सी क्यूब बाय लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे के टी तो है ऑलरेडी, डी न्यू के जगह में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लेके सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा यहाँ पे लेंगे। ओके, सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा यहाँ पे लेंगे, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा एक नेगेटिव साइन आएगा 8 पाई बाय लैम्डा टू दी पावर 4 के टी, 8 बाय लैम्डा टू दी पावर 4 के टी डी लैम्डा ये मिल जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, न्यू के जगह में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, न्यू है यहाँ पे, न्यू की जगह में यहाँ पे मैं अगर ये पुट कर दूं कि इसका जो वैल्यू है न्यू की जगह में डी लैम्डा अगर ला दूं, न्यू की जगह में यहाँ पे एक डी लैम्डा ला लेते हैं। मतलब यहाँ पे सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन अगर कैंसिल हो गया तो नो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसको, यहाँ पे नेगेटिव साइन आने का कॉज ठीक से देख लो। यहाँ पे यू डी न्यू है, यहाँ पे देखो मैंने जो रेंज लिया था न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, अगर
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ तो डिक्रीज करेगा, मतलब वेवलेंथ के रेंज में जाएगा लैम्डा टू लैम्डा माइनस डी लैम्डा। ओके, मतलब यहाँ पे जो डी न्यू इज इक्वल टू है, डी न्यू इज इक्वल टू है माइनस डी लैम्डा। ओके, न्यू इंक्रीज करेगा तो लैम्डा डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे डी न्यू की जगह में मैं अगर माइनस डी लैम्डा पुट कर दूँ तो यू डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4 इंटू डी लैम्डा, ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, ये हमें रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया। अगर इस रिलेशन से हमें क्या चाहिए, हमें अगर एमिसिव पावर निकालना है, एमिसिव पावर यहाँ से अगर निकालना है तो एमिसिव पावर का एक रिलेशन है। एमिसिव पावर का रिलेशन वो तुम लोगों को याद रखना चाहिए, ई लैम्डा एमिसिव पावर इज इक्वल टू C/4 इंटू यू, ये रहा एमिसिव पावर का रिलेशन। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को मिला के मुझे एमिसिव पावर का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एमिसिव पावर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4 के टी। और इस रिलेशन को हम बोलेंगे रैले जीन्स फॉर्मूला। ओके, रैले जीन्स फॉर्मूला बोलेंगे इसी को हम बोलेंगे रैले जीन्स फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैले जीन्स फॉर्मूला से हमें मिल गया ई लैम्डा का एक रिलेशन, ई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4 इंटू के टी, रिलेशन मिल गया। यहाँ पे देखो ग्राफ का जो लैम्डा अप टू इन्फिनिटी, उसके लिए हमें ई लैम्डा का जो वैल्यू है वो 0 मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या, ये तो ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज जो ग्राफ है वो तो इस तरह का ग्राफ है। सो यहाँ पे ये तो 0 बन जा 0 हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा को इन्फिनिटी कर दो तो ई लैम्डा 0 बन रहा है। बट अगर लैम्डा टेंड्स टू 0 है, लैम्डा 0 है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रैले जीन्स दिस बिकम इन्फिनिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू रैले जीन्स दिस बिकम इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे ग्राफ इस तरफ जाएगा। मतलब रैले जीन्स हाफ एक्सप्लेन कर रहा है इसको, बट फुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो लैम्डा को 0 की तरफ अगर लैम्डा को घटाया जाए, यहाँ पे वेवलेंथ को अगर घटाया जाए तो आफ्टर व्हेन इट बिकम 0 देन ई लैम्डा बिकम इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रीजन है जहाँ पे लैम्डा घट रहा है, उस रीजन में रैले जीन्स इसका जो एक्सप्लेनेशन वो काम नहीं कर रहा है। इस चीज को यहाँ पे जो ये काम नहीं कर रहा है ना, लैम्डा टेंड्स टू 0, वहाँ पे ई लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है, ये जो काम नहीं कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफी। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। ओके, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी क्या है। ओके, नाउ तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बन गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन लेके आया मैक्स प्लैंक। ओके, मैक्स प्लैंक proposed the idea of quantization of energy। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था, मैक्स प्लैंक ने बोला कि ये जो ऑसिलेटर्स है ना, यहाँ पे जो ऑसिलेटर्स है, जो ऑसिलेट कर रहा है, जो एटम्स को मैंने ऑसिलेट करने के लिए मैंने जो इमेजिन कर लिया था, वो कंसिडर, वो जो ऑसिलेशन कर रहा है उसका जो एनर्जी एमिट होगा वो एनर्जी एक्चुअली क्वांटाइज्ड होगा, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा। द एमिट एनर्जी इन क्वांटाइज्ड फॉर्मेट, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू बन जाएगा n इंटू एच न्यू। ओके, n इंटू एच न्यू। और यहाँ पे एच न्यू क्या है, एच न्यू है फोटॉन्स का एनर्जी, न्यू है फ्रीक्वेंसी, एच है प्लैंक कांस्टेंट, एच है प्लैंक कांस्टेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने एक्सप्लेन करने का सोच लिया कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एनर्जी एमिट कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे ले लिया
कि क्या यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जब तुम लोगों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा तब इस बारे में हम जानेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है वो ये है n नॉट, n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस एनर्जी डिवाइडेड बाय kT। ओके, तो एनर्जी तो यहाँ पे हमने ले लिया Nhν, सो यहाँ पे एनर्जी बन जाएगा n नॉट e टू दी पावर माइनस nhν डिवाइडेड बाय kT। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एनर्जी पर एटॉम, दैट मींस एवरेज एनर्जी। जो मैंने एप्सा ले लिया था उसका वैल्यू चाहिए एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? सिंपल एवरेज ले लो, Ni। यहाँ पे एनर्जी का एवरेज लेना पड़ेगा, एनर्जी का एवरेज लेना पड़ेगा। तो एनर्जी का एवरेज क्या होगा? एनर्जी का एवरेज लेने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए EI Ni डिवाइडेड बाय समेशन ओवर Ni। Ni की जगह में तो ये पुट होगा। अब ये एवरेज एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो बन जाएगा ये एप्सा इज इक्वल टू n नॉट इंटू nhν एक्सपोनेंशियल माइनस nhν बाय kT divided by summation over n naught exponential nhν by kT। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे मुझे एक कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। क्या? एक्सपोनेंशियल hν by kT, इसको अगर x मान ले तो यहाँ पे एप्सा इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा? hν तो कॉमन ले लेंगे, hν कॉमन ले लेंगे। hν कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखो n नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले ही n का वैल्यू 1 है, ओके, n का वैल्यू 0 है। n का वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे पहले n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे 1 बन जाएगा एक, ओके, यहाँ पे एक 1 बन जाएगा पहले ही। ओके, एक 1 बन जाएगा n की वैल्यू 0 होने के लिए, e टू दी पावर 0। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पुट करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा? n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ओनली x रह जाएगा, ओके। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 2 पुट करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। सिमिलरली ऐसे आता जाएगा, बट यहाँ पर भी एक n है। उस n के लिए n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करने के लिए यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ओके। जस्ट अ मिनट n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0 पुट करने के लिए यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, सॉरी n 0। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू x आएगा, तो वो x आ जाएगा। यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं पहले। n इज इक्वल टू 0 पुट करने के लिए हमें hν तो बाहर है, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे
सिर्फ x आएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक 2 रहेगा, यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे n इज इक्वल टू 0 पुट करने से 1 आएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करने से x आएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करने से एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ऊपर से हम एक काम कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, h न्यू तो 1 प्लस यहाँ पे देखो 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे ऊपर जो सीरीज है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा एक्स एच न्यू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू होल टू दी पावर माइनस 2। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, जीपी है, एक्स है सीरीज, और यहाँ इनफाइनाइट सीरीज के लिए जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो है 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस 1। ओके, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल टर्म तो 1 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा एच न्यू डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ पे x का जो वैल्यू था वो है ये, इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एप्सा का एक वैल्यू आएगा। एप्सा का वैल्यू क्या आएगा, एप्सा का वैल्यू आ जाएगा एच न्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। यहाँ पे एच न्यू नहीं रहेगा, हाँ एच न्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये रहा एप्सा का वैल्यू। अब हमें टोटल वैल्यू चाहिए। टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है यहाँ पे u लैम्डा डी लैम्डा, इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो है 8 पाई, जस्ट मिनट, यहाँ पे 8 पाई के साथ एप्सा का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, 8 पाई बाय लैम्डा टू दी पावर 4 एप्सा इंटू डी लैम्डा, यही था वैल्यू। यहाँ पे एप्सा में ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन कि 8 पाई बाय लैम्डा टू दी पावर 4 इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे जो न्यू है, न्यू की जगह में हम c बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं। न्यू की जगह में c बाई लैम्डा अगर पुट कर दे तो हमें ये मिल जाएगा कि 8 पाई 8c बाई लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 8c बाई के टी लैम्डा 8c बाई के टी लैम्डा माइनस 1। ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसे आता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं कि प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। ओके, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर लैम्डा टेंस टू 0 करेंगे तो लैम्डा टेंस टू 0 करने के लिए हमें मिल जाएगा कि ई लैम्डा टेंस टू 0। यहाँ पे लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी कर दो तब भी हमें मिल जाएगा ई लैम्डा टेंस टू 0। ओके, मतलब एमिसिव पावर का जो एक्सप्लेनेशन है, जो हमें मिल रहा था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो यहाँ से मैच कर रहा है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। अब ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन हमें कैसे मिला? हमें मिला जब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को हमने माना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तभी हमें ये मिल गया। मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ओके, हमें ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये पहला स्टेप था जहां से हमें क्वांटाइजेशन को सोचना पड़ा कि E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, क्वांटाइजेशन को सोचना पड़ा। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे लैम्डा टेंस टू 0, लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी, ये सब हम यूज करेंगे तो हमें बहुत इजीली
सारा जो एक्सप्रेशन है, रेलेजेंस फार्मूला जो है, विन्स फार्मूला जो है, वो सब कुछ यहाँ से आ जाएगा। ओके, विन्स फार्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। विन्स फार्मूला का जो एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से ही आ जाएगा। विन्स फार्मूला के लिए हमें ये जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन में हमें इसी एक्सप्लेनेशन से फ्रॉम दिस हमें दो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक आएगा रेलेजेंस फार्मूला, कहाँ आएगा, लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो रेलेजेंस फार्मूला हमें मिल जाएगा। लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू दी पावर 4 इनटू केटी, ये हमें मिल जाएगा। और विन्स फार्मूला हमें मिलेगा इसके साथ। विन्स फार्मूला क्या है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें क्या मिलेगा, वो लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एंड दिस कॉन्स्टेंट, ये जो कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है वो है 0.29 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, 0.29 इंटू 10 टू दी -2 मीटर, ये है विन्स फार्मूला। यहाँ पे लैम्डा m है जो मैक्सिमम जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ। ओके, मैक्सिमम जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा ग्राफ। ओके, ये है लैम्डा m, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे है एनर्जी। ओके, तो ये रहा हमारा लैम्डा m। तो इससे हमें विन्स फार्मूला मिल रहा है, यहाँ से रेलेजेंस मिल रहा है। और एक फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4, यहाँ पे कहाँ मेंशन किया था मैंने। ओके, दिस इज E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर, यहाँ पे मैंने, ये है स्टीफन लॉ, एक्चुअली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, किरचॉफ्स लॉ नहीं है, किरचॉफ्स लॉ है एमिसिव पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन पावर, तो वो है किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये रहा तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैंने थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे बोला है। अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा, यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्टीज दे सकता है। ओके, बिकॉज तुम लोगों ने अभी तक स्टैटिस्टिकल नहीं पढ़ा है। स्टैटिस्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो नॉर्मल जो नोड्स मैंने लिया था। ओके, नोड्स का जो कॉन्सेप्ट लिया था उसमें स्टैटिस्टिकल जो kx, ky, kz का मैंने कॉन्सेप्ट लिया था, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल का यूज़ बहुत है। ओके, और मैंने फिर भी ट्राई किया है वो एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो रिलेशन है, इसको तुम्हें याद रखना है। ओके, इसको तुम्हें याद रखना है। इसी से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, रेलेजेंस फार्मूला एंड विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट Compton effect. This is the second important part of this basic quantum mechanics, and then we discuss wave particle duality. Okay, so thank you for watching. Subscribe this channel and share with your friends.